Hello everyone, welcome to our YouTube platform. This is Vikas Kumar on my YouTube channel Agriverse Education. Friends, today we have come up with a new topic which is a very burning issue, and in the recent articles, news, debates, it has been very popular nowadays, that is GM mustard. तो हम देखेंगे कि why GM mustard crop is in news and what is GM mustard and how it has been developed and what are the pros and cons of GM mustard. So recently the government, or basically we can say GEAC, took the decision to release India's first genetically modified food crop, that is Dhara Mustard Hybrid 11. Dhara Mustard Hybrid 11, which is developed by the genetic engineering, and recently some activists approached to the Supreme Court to ban it for various reasons. So we will discuss on later slides. Initially we will know what are the GM crops. GM crops basically are the crops, or we can say are plants used in agriculture in which the DNA of which has been modified using genetic engineering techniques. So basically what we are doing here, that we are manipulating the gene, the genetic makeup of the plant. And if we talk about the history of genetic modified crop, so the first crop that was modified, it was tobacco. And in tobacco the genetic makeup was manipulated to develop the resistance to antibiotics, and it was developed in 1983, and later in 1960s, and later in 1996 the first genetically altered crop, a delayed ripening tomato, was commercially released, and it was the first genetically modified food crop. Tobacco is not a food crop, not totally food crop, but tomato is a we can say we use in a regular food item. So we can say that tomato was the first commercially released genetically modified food crop, and the variety was flavor saver. Moving to the next slide, we will see the regulation in India, like what are the acts and rule that regulates the development, manipulation, manufacturing, storage of seeds of genetically modified crops. It includes Environment Protection Act 1986, and other act is Biological Diversity Act 2002, Plant Quarantine Order 2003, GM Policy under Foreign Trade Policy, Food Safety and Standard Act 2006, Drugs and Cosmetic Rules, 8th Amendment 1988. So these are some act and rule which regulate GM crops in India. So let's see what is the chronology of the development of genetic modified crops in India. So the first crop, that is BT cotton. BT cotton पहली क्रॉप है जिसको अप्रूवल मिला था GEAC एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द कॉमर्शियल रिलीज, एंड इट वाज अप्रूव्ड इन 2002. एंड लेटर इंडिया डेवलप्ड ए BT brinjal. It is also a GM crop and it was approved by GEAC in 2007, but later it was rejected. So basically जो BT cotton crop है, BT cotton में जो इसमें एक जीन इनकॉर्पोरेट किया गया जो कि एक पेस्ट है हमारा अमेरिकन बॉलवॉर्म, और अदर बॉलवॉर्म जो है उसके खिलाफ ये रेसिस्टेंट को डेवलप करता है. और बीटी ब्रिंजल में भी ये इंसेक्ट के खिलाफ ये जो बीटी है, बीटी जीन, क्राई जीन हम बोल सकते हैं बेसिकली, जो बेसिलस थुरिंजेंसिस है एक बैक्टीरिया, उससे क्राई जीन को एक्सट्रैक्ट करके इस पर यूज़ किया गया. और अभी जो बात हो रही है वो है GM मस्टर्ड की. GM मस्टर्ड इसको भी पहले अप्रूवल मिल चुका है 2017 में, बट इसको विदहेल्ड कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और अभी भी सेम यही चीज़ हो रहा है कि जो GEAC है इन्होंने तो इसको अप्रूवल दे दिया है, बट गवर्नमेंट के एंड से अभी भी ये विदहोल्ड में है. सो लेट्स टॉक अबाउट BT cotton and BT brinjal. The BT cotton commercial cultivation in India was started in year 2002, and initially 3 BT varieties, namely MAC 12, MAC 162 and MAC 184 were released commercially by Mahiko Seed Company. So it is important, there was a company, Mahiko Seed Company. It is known as a pioneer company that brings the BT cotton in India, and BT cotton was developed by cloning, the transferring the gene encoding the toxic crystal endotoxin protein from the soil bacterium Bacillus thuringiensis, and in this case cry gene was utilized from the BT
दैट इज़ बैसिलस thuringiensis। और यहाँ लिखा भी है क्राइवन AC, इसको यूटिलाइज किया था इनिशियली माइको कंपनी ने। एंड इन लेटर GAC ने 2007 में BT ब्रिंजल की कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भी रिकमेंडेशन दी थी, और इसको बनाया था माइको, दैट इज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, इन कोलैबोरेशन विद द धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड द TNAU। But the initiative was blocked in 2010 and later it also blocked in 2011. So what is the present status of genetically modified crops in the world? So genetically modified crops, as we later discuss, it was initially developed in 1983, and after the 1996 there are many genetically modified crops all over the world. So currently around 200 million hectare area is under genetically modified crop. और मेजर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें तो सोयाबीन एंड कॉर्न, इसके मेजर जो कंट्रीज़ हैं USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में इसकी ग्रोइंग करी जाती है। कैनोला, जिसमें आपका ये रेपसीड मस्टर्ड आता है, कनाडा में इसका बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है। और अराउंड 70 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने GM क्रॉप्स की कल्टीवेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, 2002 में इन्होंने इसका परमिशन दिया, BT कॉटन की कल्टीवेशन को इंडिया पे परमिशन दिया। उस टाइम पे जो प्रोडक्शन था 13.6 मिलियन बेल्स था ओनली, और ये 39.8 मिलियन बेल्स हो गया इन 2013 टू 14, ऑलमोस्ट 192% इंक्रीमेंट देखने को मिला। और बात करी जाए यहाँ पर बेल्स की, सो व्हाट इज बेल्स? बेल्स इज अ यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ कॉटन। 1 बेल्स मीन्स 170 kg in case of cotton, and if we talk about and in case of jute and mesta, the 1 bale is equal to 180 kg। और करेंटली बात करें कि इंडिया में BT कॉटन का एरिया कितना है, कंपेयर करें सारे कॉटन, नॉन BT और BT कॉटन, तो ऑलमोस्ट 95% जो एरिया है वो BT कॉटन में है। तो आप देख सकते हैं कि BT कॉटन का कितना ज़्यादा प्रिविलेज है इन इंडिया में। और कॉटन और मस्टर्ड का डेटा भी देख लेते हैं। रेपसीड एंड मस्टर्ड का टोटल प्रोडक्शन 11.7 मिलियन टन है अकॉर्डिंग टू द फोर्स एडवांस एस्टिमेट। लीडिंग प्रोड्यूसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, एरिया वाइज में भी राजस्थान पहले है। कॉटन का प्रोडक्शन 31.2 मिलियन टन्स, और यह है 2021 टू 22 का डाटा। लीडिंग प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है, एरिया वाइज भी महाराष्ट्र टॉप पे है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, और वी कैन से GM मस्टर्ड। इसको डेवलप कैसे किया, कैसे बनाया गया, इसके पीछे क्या क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या नुकसान है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसको बनाया किसने। इसको बनाया था दीपक पेंतल, जो कि ex-DUVC भी रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं। इन्होंने 2007 में इसको डेवलप किया, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को। और बात करें कि इसको बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। जो DMH 11 वैरायटी है, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो मस्टर्ड क्रॉप है, मस्टर्ड क्रॉप बेसिकली इज़ ए हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, या बोल लें कि बहुत ही ना के बराबर होते हैं। और हमें अगर कोई वैरायटी डेवलप करनी पड़ती है तो एक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एक ही स्पीसीज़ या डिफरेंट स्पीसीज़ के क्रॉप्स को क्रॉसिंग करके एक ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटी या जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हमको चाहिए, ऐसे ही कुछ वैरायटीज़ बनाई जाती हैं। उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। बट मस्टर्ड के केस में क्या है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण हम 2 स्पीसीज़ की क्रॉसिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लाइक इन अदर क्रॉप्स, लाइक इन कॉर्न में क्या करते हैं, हम इमैस्कुलेशन कर देते हैं। इमैस्कुलेशन करके हम एक प्लांट से दूसरी प्लांट में क्रॉसिंग आराम से कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ मस्टर्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्लावर और एनाटॉमी ऑफ द फ्लावर, उसमें क्या है कि जो पिस्टिल है एंड स्टेमन, फीमेल एंड मेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट करे जाते हैं। और इसमें जो ओवरी होती है वो एकदम सुपीरियर टाइप की होती है, सुपीरियर ओवरी। और इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उस सुपीरियर ओवरी में जाके सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं। तो इस केस में, मस्टर्ड के केस में इमैस्कुलेशन भी पॉसिबल नहीं है, लाइक इन केस ऑफ कॉर्न। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने यूज़ किया बार्नेस बारस्टार टेक्नोलॉजी। अब आप पूछेंगे बार्नेस बारस्टार टेक्नोलॉजी क्या है। इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक
वीडियो है मेल स्टेरिलिटी पे, तो वहाँ पर जाकर आप इसको समझ सकते हैं कि बार्नेस बारस्टार टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में किया क्या गया। इस पर एक बैक्टीरिया है बैसिलस अमाइलोल्यूकोफेसियंस, इस बैक्टीरिया को यूटिलाइज किया गया। इसमें से 3 जीन, एक है बार्नेस जीन, एक है बार जीन और तीसरा है बारस्टार जीन, इसको यूटिलाइज किया। बार्नेस जीन इज रिस्पॉन्सिबल एंड इट इम्पेयर्स पोलन प्रोडक्शन, ये क्या करता है, पोलन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। बार जीन क्या करता है, ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द हर्बिसाइड दैट इज ग्लूफोसाइनेट अमोनियम। और बारस्टार जीन क्या करता है, ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ बार्नेस जीन एंड ये क्या करता है, प्लांट को स्टेराइल नहीं होने देता। और जो बार्नेस जीन है ये प्लांट को क्या करता है, स्टेराइल कर देता है। ये मेल स्टेरिलिटी को फेवर करता है, ये भी बोल सकते हैं, बट बारस्टार जीन इसको इनहिबिट करता है। चलिए समझते हैं, चलिए पहले समझते हैं कि ये वैरायटी बनाई कैसे गई है। तो यहाँ पर क्या किया, जो एक वरुणा वैरायटी है, वरुणा वैरायटी में बार्नेस को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो दूसरी वैरायटी है अर्ली हीरा 2, ये एक यूरोपियन म्यूटेंट वैरायटी है, इसमें बारस्टार जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो बार्नेस था इसने वरुणा में मेल स्टेरिलिटी ला दी, मेल स्टेरिलिटी, यानी कि इसका मेल स्टेराइल हो गया, मेल पार्ट स्टेराइल हो गया। और जो बारस्टार जीन है, जब हमने इन दोनों की क्रॉसिंग करी, इसका जो पॉलन है वो इसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया, इसका पॉलन इसमें, तो क्या होगा, इस क्रॉस में जो सक्सेस रेट होगी वो बढ़ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो इससे जो एक नई वैरायटी निकल के आई उसको नाम दिया गया GMH11, जिसमें जो यील्ड हमने देखी वो वरुणा से 28% ज़्यादा मिली, जो यील्ड थी 28% ज़्यादा थी। एज वेल एज जो बार जीन था इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये हर्बिसाइड को रेसिस्टेंट थी, जो ग्लूफोसाइनेट अमोनियम हर्बिसाइड है उसके खिलाफ भी ये रेसिस्टेंट थी। और बारस्टार जीन ने क्या किया कि जो बार्नेस जीन का इफेक्ट था उसको कम कर दिया। सो थैंक्स टू बारस्टार जीन, जिससे GMH11 जो वैरायटी है इसको डेवलप करने में आसानी हुई। चलिए हमने साइंटिस्ट की तो बात कर ली थी कि DMH11 जो दीपक पेंटल थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा था। इंस्टीट्यूट था सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली ट्रांसजेनिक क्रॉप नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो इसके पेरेंट्स है वरुणा और अर्ली हीरा 2, इस पर हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन किया। इसके क्रॉस से जो बन के आया वो है GMH11। तो बोल सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है। और रिसेंटली जो अक्टूबर का महीना था, GEAC जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो आती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने रिकमेंड किया एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ द ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 फॉर सीड प्रोडक्शन। और न्यूज़ में क्यों है ये, जैसे ही मैंने बताया कि ये अक्टूबर के महीने में इसका कॉमर्शियल रिलीज़ के लिए या बोल रहे हैं एनवायरमेंटल रिलीज़ के लिए GEAC ने नोट किया, GEAC ने हामी भरी। तो उसके बाद जितने भी एक्टिविस्ट थे, NGOs थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने जो इसके कंसर्न थे उसको रेज करने शुरू कर दिए। और बहुत से एक्टिविस्ट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पिटीशन भी फाइल करी इन सुप्रीम कोर्ट टू बैन दिस वैरायटी फॉर कमर्शियल रिलीज। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो NGOs हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये लोग अलग अलग कंसर्न बता रहे हैं कि इसको बैन क्यों करना चाहिए, और इन्होंने सीधे अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पर कुछ कंसर्न मैंने मेंशन किए हैं। पहला कंसर्न है, तो उन्होंने पहला कंसर्न तो ये बताया है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए लॉन्ग टर्म में बैड इफेक्ट दे सकता है, एज वेल एज जो हनी बी पॉपुलेशन है इस पर भी ये बैड इफेक्ट शो कर सकता है। अब इसको मतलब एकदम हेडिंग वाइज हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंसर्न है। पहला कंसर्न है सुपरवीट का कंसर्न। जैसा कि मैंने बताया कि जो बारजीन है, बारजीन को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। बारजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड। तो क्या होगा कि प्लांट में रेसिस्टेंट है हर्बिसाइड के अगेंस्ट, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, कुछ हम ज़्यादा अगर इसको यूज़ करेंगे ग्लूफोसाइनेट हर्बिसाइड को, तो कुछ ऐसे जेनेटिक मेकअप में चेंज आ सकता है वीट के जो उसको हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बना दे और एक नए सुपर वीट को जन्म दे दे। ऐसा भी होता है जैसे वीट के केस में है, लाइक दैट इन केस ऑफ मस्टर्ड इट में हैपन। सो इस केस में ये सुपर वीट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए
अगला कंसर्न बताया जा रहा है सेकेंडरी पेस्ट इंसर्जेंसी का। देखो ये कंसर्न नहीं है, बट एक्टिविस्ट जो है इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इसमें ऐसा हो सकता है तो मस्टर्ड के केस में भी इट मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे बीटी कॉटन के केस में क्या है, सकिंग पेस्ट का डैमेज आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसे स्पोडोप्टेरा भी है, कैटरपिलर लाइक दिस, जो अमेरिकन बॉलवॉर्म है, इससे अदर्स जो सकिंग पेस्ट है, एफिड है, वाइट फ्लाई है, और एक स्पेशल क्लास है स्पोडोप्टेरा। तो ये जो इंसेक्ट है इसका इंसर्जेंसी बढ़ गया है कॉटन में, तो ये भी एक कंसर्न है, तो उसका भी एग्जांपल दे रहे हैं लोग। और हेल्थ इम्प्लीकेशन की भी बात करिए कि जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन एज वेल एज जो ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा इन द लॉन्ग टर्म, क्या इससे कुछ हेमेटोटॉक्सिन रिएक्शन होंगी या नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक्टिविस्ट इस वजह से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक बात ये भी बताई जा रही है कि इससे क्या होगा कि हर्बिसाइड कंपनी की मोनोपोली होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक हर्बिसाइड के लिए टॉलरेंट है, और हर्बिसाइड का नाम क्या है? ग्लूफोसाइनेट अमोनियम। अब लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जीएम मस्टर्ड की सोइंग करेंगे तो उस पर स्पेसिफिकली यही हर्बिसाइड की उनको रिक्वायरमेंट होगी, अदर हर्बिसाइड तो वो डालेंगे नहीं क्योंकि उसके रेसिस्टेंट तो है नहीं। तो ग्लूफोसाइनेट की जो कंपनी रहेंगी तो उनमें मोनोपोली आ सकती है, और इट में चांसेस, और यहाँ पर चांसेस भी हैं कि इसके प्राइस को बढ़ा दिया जाए, जो कि फार्मर्स को अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा। और एक कंसर्न ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए जो वीड है वो हर्बिसाइड से ही क्या हो जा रही है, सप्रेस हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि लेस डिमांड होगा मैनुअल लेबर का, जो मैनुअल लेबर्स हैं वीडिंग करते हैं हैंड से, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो क्या है कि जो क्रॉप है वो रेसिस्टेंट है, तो ईजिली और जो इफेक्टिवली हर्बिसाइड है उसको अप्लाई कर देंगे, तो इस वजह से मैनुअल लेबर की लेस डिमांड होगी। अगला है थ्रेटनिंग द पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज, जो कि सबसे मेजर कंसर्न बताया जा रहा है, और इस पर बहुत डिबेट्स चल रही हैं आजकल। तो इस पर बताया जा रहा है कि हनी बीज के पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि हनी बीज अल्टीमेटली नेक्टर पे फीड करती हैं और मस्टर्ड की क्रॉप में भी फीड करती हैं। मान लीजिए उसके नेक्टर से या उसके पॉलन से लॉन्ग टर्म में हनी बीज के पॉपुलेशन पर कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। चलिए एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। और जो जीएम मस्टर्ड क्रॉप है इसके बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स कराए गए, जिसमें ये देखा गया कि जो यील्ड थी वो 25 to 28% हाइयर थी, और इसमें बेटर डिजीज रेसिस्टेंट भी था कंपेयर टू द इंडिजिनस वेराइटी लाइक वरुणा। और कंट्री ने बात करी जाए, कंट्री का जो अभी इंपोर्ट है वो है 14 to 40.5 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल, और कंट्री बनाती है कितना, 8 to 9 मिलियन टन्स एनुअली। तो आप देख रहे होंगे कि कितना गैप है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है और हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ये जो वैरायटी है तो ये कम कर सकती है। और साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल है आप देख रहे होंगे 18.99 बिलियंस, ऑलमोस्ट $19 बिलियन, इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो इस चीज़ को भी कम कर सकता है अगर हम ये वैरायटी यूज़ करेंगे। और अदर देन दिस इट में रिड्यूस मैनुअल लेबर कॉस्ट ऑफ वीडिंग, और हाई यील्डिंग जीएम मस्टर्ड जो है वो हमारी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पॉपुलेशन एवरी डे इज इंक्रीजिंग, every year population is increasing, so it may meet the demand of increasing population। हर्बिसाइड एफिशिएंसी बढ़ सकती है इससे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ेगी। चलिए ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या कंसर्न थे, क्या क्या एडवांटेजेस थे। अब बात कर लेते हैं आयरनी क्या है, क्योंकि एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था वहाँ पर ये दिखाया गया है डेटा कि जो इंडिया है, इंडिया अभी प्रेजेंटली और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं या बोल लें फूड है उसको कंज्यूम कर रही है बहुत समय से। चलिए हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो इम्पोर्टेड हम जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं 50 to 60% ऑफ इंडियाज़ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, जितना भी एडिबल ऑयल का रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 50% इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब क्या है कि जो जितना भी टोटल इंपोर्ट एडिबल ऑयल है उसका 4 मिलियन टन्स एवरी ईयर कम्स फ्रॉम ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना एंड यूएस। और इनिशियल स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि जो कॉर्न है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, उसका जो जीएम क्रॉप्स का मेजर कल्टीवेशन इन्हीं कंट्रीज़ में है, समझ रहे हैं ना आप। तो 4 मिलियन टन्स का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं जो कि जीएम क्रॉप से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो उसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। एज वेल एज जो बिनोला ऑयल है, जो कॉटन के सीड से ऑयल बनता है, इंडिया उसको भी कंज्यूम कर रहा है, जो कि इंडिया खुद ग्रो कर रहा है बीटी कॉटन को। तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर कॉटन आपको पता होगा बीटी कॉटन है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसको भी इंडिया कंज्यूम कर रहा है। इवन जो हम कैटल्स को लाइक काउस, गोट, इनको जो हम कॉटन सीड फीड करवाते हैं
या कॉटन का जो फॉरेज है, सीड है, इसको फीड कराते हैं, अल्टीमेटली वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और हम काउस का मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा जो हम पोल्ट्री फीड को फीड देते हैं, सोया फीड, कॉर्न फीड, इसका भी इंपोर्ट किया जाता है, लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएस। और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में चिकन है, डक है, इसको हम अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ऑलरेडी हमारे फूड चेन में इंक्लूड है। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये कुछ कंसर्न थे और यहाँ पर आयरनी भी मैंने इंक्लूड कर दी है। और इसमें से जो मुझे लगता है मेजर कंसर्न जो है, एक तो सुपर वीट का कंसर्न, क्योंकि ये देखा गया है रिसेंट ईयर्स में, लाइक इन केस ऑफ वीट। और इसके अलावा जो मैंने बताया हनी बीज के केस में, कि लॉन्ग टर्म में हनी बीज को ये इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा, 2 चीज़। तीसरी चीज़ कि ये लॉन्ग टर्म में ह्यूमन को, जो ह्यूमन की बॉडी है, उसमें कोई इम्प्लीकेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इसकी कभी कोई एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।